So let us begin. So warm welcome to the core concept of yoga, right? This is the concept of yoga, core concept. Why we need to understand this. Why this is the core concept? ये हमारा योग का मेन कंसेप्ट क्यों है? महर्षि पतंजलि ने हमें ये समझाया है कि हमारा नवधा तुष्टि ही मेन योग है, राइट? जब अष्टधा सिद्धि होगी तब नवधा तुष्टि होगी, तब दशदा आर्यम प्राप्त होगा. ये बात समझनी पड़ेगी हमें. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? व्हाट इज अष्टधा सिद्धि, व्हाट इज नवधा नवधा तुष्टि, and what is dashda aharyam. So we take 10 type of food from which we receive 9 type of tushti. Tushti means santushti. 0540. Please mute yourself. So we need to understand this. सबसे पहले हम लोग यम नियम को समझेंगे. What is यम and what is नियम, right? Because अगर योग को समझना है तो हमें यम नियम को पूरी तरह से समझना होगा. अगर यम नियम नहीं समझेंगे तो हमें क्या प्राप्त करना है वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे. और जब दिशा हमें पता नहीं है, हमारा लक्ष्य हमें पता नहीं है, then we will be lost, right? And we cannot understand anything unless and until we properly grasp what yam and niyam are, right? तो सबसे पहले यम. What are yam? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. You know all that. और हमारे सभी धर्मों ने ये कहा है. इवन गांधी बापू ने भी यही कहा है, राइट? सबने कहा है. क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है. ये हम हजारों सालों से इसका पालन करते आ रहे हैं. योगिक लाइफस्टाइल का हम पालन करते आ रहे हैं. ये हमें हजारों साल पहले दिया गया था और यही लाइफस्टाइल से हम जी रहे हैं. आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये कोर्स पूरा करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से यौगिक लाइफस्टाइल में जीते थे और किस तरह से अब यौगिक लाइफस्टाइल से बाहर निकल गए, राइट? और कैसे हमें वापस उसी लाइफस्टाइल में जाना है. हाउ वी हैव टू री एंटर इनटू द यौगिक लाइफस्टाइल अगेन. Once we know how to follow yam and how to make us follow, what makes us follow yam is niyam, right? So niyam means that which leads us to yama. Niyam. In Sanskrit, ni is used for the indicative term towards. So niyam takes us towards yam, राइट? सो हम लोग हमारे जीवन में यम का पालन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीनेटिक्स और एनवायरनमेंट और आजू बाजू का सामाजिक वातावरण हमें वो करने नहीं दे रहा है. तो हमें उसको सनातन हमारे अंदर से जागृत कैसे करना है वही सीखना है नियम के द्वारा. और नियम क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक विजडम इन लाइफ. वो क्या है? शौच. शौच मतलब क्लीनलीनेस. नॉट ओनली क्लीनलीनेस फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, within the outer environment, right? Cleanliness within the body, right? Even pranic channels, chakras, cells, and at the nucleus level, right? At the level of nucleus, cell nucleus. And Maharishi Patanjali goes beyond it. He says you can even clean your genes. Right? Now we have to understand how to clean our genes. And once we clean our genes, we are able to follow yam naturally, from inherently, from inside.
right? So now we will understand what is Shaucha. But before we understand Shaucha, we need to understand other parts of the Niyama that are Santosha, Samtosha, Samtosha. तोष मतलब तुष्टि, सम मतलब बैलेंस्ड. सो हमें हमारे शरीर में बैलेंस तुष्टि लानी है. राइट मीन्स ऑफ कंटेंटमेंट. सी when you eat you feel contented, no? Right? When you drink you feel contented. When you breathe you feel contented. When you sleep you feel contented. So whatever the means are to bring contentment within us are called santosha, that are navadha. There are 9 types of santosha we can have, right? And how can we bring shaucha and santosha in life? Through tap, swadhyay and ishwar pranidhanani. Ishwar pranidhanani means to commission genome to see the genetic impurities and cleanse it through tapasya. So tap is self autophagy, induced self autophagy, right? Then swadhyay is to align with the genome, which is pure, which remains unaltered by time. It is eternally pure, right? Our genome is eternally pure. What makes it impure is epigenetic changes, right? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझें. आपका एक घर है, उसके अंदर प्योरिटी है, एकदम साफ घर है, राइट? तो उसके अंदर आपने कभी कचरा, टाइल्स की जगह पर कचरा तो नहीं लगाया था, दीवार के ऊपर कचरा तो नहीं लेपा था, राइट? तो वो कहाँ से आता है? वो बाहर से आता है, और एवरीडे आप उसको साफ कर देते हो, राइट? फर्श पे, दीवारों पे, बहुत सारी जगहों पे कचरा आ जाता है, तो आप उसको साफ कर देते हो. सो इट इज अ रेगुलर मेंटेनेंस. उसी तरह से हमारे जीवन में अलग अलग रूप में बाहर से विषय वासनाएं जो अंदर आती हैं, वो मिथाइलेशन के द्वारा, डीएनए मिथाइलेशन के द्वारा जीन्स पर अंकित हो जाती है, और वो जो जीन्स पर अंकित होती हैं, उसी प्रकार से हम वो विषय वासना को भोगते हैं और उसके प्रति लालायित होते हैं. ये एक ऐसा माध्यम है, चित्त जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जो डायरेक्शनल काम करता है. बाहर की चीज को अंदर कैसे लाना है और अंदर की चीज को बाहर कैसे प्रदर्शित करना है, उसका वो रेगुलेशन करता है. तो चित्त इज अ मैनेजर, राइट? वो मैनेज करता है आपके जीवन को. इसको हम एपिजीन बोलते हैं, राइट? सो इस तरह से भगवान ने ऐसी सिस्टम रखी है कि जिसपे एक बफर रखा है, कि जो बफर आप चाहो तो साफ कर सकते हो, राइट? ईश्वर ने ऐसा हमारा शरीर बनाया, हमारे सेल्स बनाए, कि जिसके अंदर उन्होंने एक बफर रखा चित्त को, जिसको हम साफ कर सके, रोज साफ कर सके, ड्यूरिंग द लाइफ के अंदर चलते चलते साफ कर सके. वो जनरली हम साफ करते ही हैं. हम नहाते हैं, हम बहुत सारी शुद्धिकरण की क्रियाएं करते हैं, राइट? षटकर्म करते हैं, ये सब करते हैं. पर हम जब सोते हैं तब ये सफाई का काम बहुत पूर्ण जोश में चलता है, राइट? इसीलिए हमको 8 घंटे मिनिमम सोना पड़ता है. और ये हमारी एक टाइप की तपश्चर्या है. इसको हम एक तपश्चर्या बोल सकते हैं. जितनी गहन नींद उतनी गहन आपकी तपश्चर्या.
आपके सभी जीन्स के ऊपर जो आया मालवेयर है, वो आपकी नींद में वो दूर होने का प्रयत्न करता है। पर आप सोने से पहले क्या विचार करते हो? क्या आप मन में क्या भाव से आप नींद को बुलाते हो? उस भाव का प्रभाव बहुत रहता है। आप अगर अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को नया जीवन देने के लिए सोते हो, तो ऐसा ही शुद्धिकरण होगा पूरी रात। और अगर आप उस तरह से नहीं सोते हो और वैसे ही मतलब बिना अवेयरनेस के सो जाते हो, तो आपका जो प्रोसेस है, वो अपने आप चलता है, वो कॉन्शियसली नहीं चलता है। तो वो आपको वो डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। सो व्हाट व्हाट चित्त इज डूइंग? चित्त इज वर्किंग बाय डायरेक्शनली। बाहर से जो इमेज आता है, दैट इमेज इज इम्प्रिंटेड इन द चित्त, and according to the print, the gene executes the functions through चित्त. It is the epigene. So ऐसा बफर अच्छा बहुत बहुत अच्छा बफर सिस्टम रखा है भगवान ने, जिसको हम बदल सकते हैं, राइट? और ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले रिकॉग्नाइज करी और उसको सांख्य योग दर्शन के द्वारा पूरा साइंस दिया कि हाउ यू कैन इंड्यूस ऑटोफेजी टू अलाइन योरसेल्फ with the original form of genome, which is called ईश्वर. एंड ईश्वर क्या है? जीनोम तो बोलते हैं उसको, लेकिन जीनोम इज मॉडर्न नेम, पर ईश्वर क्या है? परमेश्वर का एक स्वरूप। और परमेश्वर क्या है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, राइट? सो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हमारे परमेश्वर है, और उस कॉन्शियसनेस में हम हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को जिलाते हैं। वो ईश्वर है, हमारे ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, और वो ईश्वर अपना जो भाव प्रदर्शित करते हैं वो एपिजेनेटिकली करते हैं, कि जिससे आपकी डे बाय डे नीड, ग्रोथ की नीड पूरी हो, आपकी नवदा तुष्टि हो, राइट? अगर तुष्टि नहीं होगी तो आप अष्टधा सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो सब हम इस कोर्स में देखेंगे, राइट? ये बेसिक, इट वाज द नीड ऑफ द टाइम, so you need to understand the basic things about it, right? Otherwise the course will be a bouncer to you, right? Okay, now let me know whether you have understood or not. Let us revise again, right? Let us revise in English again, so that the people who understand only English can get it perfectly understood, right? Okay, so we have yam and niyam, right? Yam is to be followed from within. It should not be implemented from outside. See, if I say don't tell lies, right? So that will be an instruction to an individual, right? And the individual will decide whether to speak right or wrong, right? But it should come from within. The satya should come from within. Ahimsa should come from within, right? So for that we need to practice niyama. And niyama are the practices that leads us to the Ishwar level, genome level, which is pure, unaltered, eternal form of cosmic consciousness. Got it? Now, these epigenetic modifications are temporary. They are not permanent. But if you reiterate again and again the same functioning, same style, same graspings, same diet, then it will become eternal after some days, some months, or some years. So our ancestors, they always insisted that we should keep our diet such a way, our lifestyle such a way, that it should be
programmed properly towards the truth, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, and aparigraha. So they took care of this, right? And then they devised some technologies that can lead us to that level of epigenetics, to that level of genome, right? अब सोचो, आप अगर सोचो, अगर आपको भगवान बना दिया जाए और आपको इंसान की रचना करनी हो, ये साइंस ऐसे नहीं समझ में आता है। मैं बात करूं, आप सुन लो, समझ के घर चले जाओ और फिर बाष्पीभवन हो जाए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डीप थिंकिंग। आप ये सोचो, आपको भगवान बना दिया जाए, आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश बना दिया जाए, राइट? तो आप ब्रह्मा का रोल कैसे करोगे? विष्णु का रोल कैसे करोगे? महेश का रोल कैसे करोगे? क्या आप अच्छे सेल्स को मार दोगे महेश का रोल करोगे? तो आप महेश का रोल करोगे तो बुरे सेल्स को ही मारोगे, राइट? खराब सेल्स को ही मारोगे, गंदगी को ही दूर करोगे, गंदे सेल हो गए उनको ही मारोगे, राइट? तो ऐसा करने के लिए आपको उस तरह का जेनेटिक एनवायरनमेंट चाहिए, जेनेटिक कंस्ट्रक्ट चाहिए। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक कंस्ट्रक्ट विदिन अस, विदिन द जीनोम। हमारे जीनोम के अंदर ये 3 टाइप मौजूद है, राइट? वो तीनों टाइप में एक क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है, एक रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस है और एक टाइम कॉन्शियसनेस है। एक टाइम के लिए सेल को जिंदा रखता है, उसके बाद उसका टाइम खत्म होते ही वो सेल को मार देता है, राइट? सो वो इसीलिए उनको महादेव बोला गया है। वो कालों के काल है, महाकाल, राइट? सो ये तीनों के ऊपर जो रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उनको हम शिव बोलते हैं। जो खुद नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन है, हमें दिखते नहीं है। दिशा, आई कैन नॉट फोकस, दिशा, आई कैन नॉट फोकस, you just stop talking to others, huh? I cannot focus because you are exactly beside me, right? Okay, so हम वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को देख कैसे पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। दैट इज वाई उनको एक रूपक के रूप में मेटाफोरिकली हमें प्रेजेंट किया गया कि जो महायोगी है, जो पूरे विश्व का योग संभालते हैं, चलाते हैं, उन्हें हम शिव बोलते हैं। वो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, शिवा, राइट? एंड आवर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को हमने ईश्वर नाम दिया। एंड ईश्वर हैज 3 फेसेस, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, राइट? और ब्रह्मा जी को 3 फेस पे क्यों दिखाया गया है? हमारा जब जन्म होता है तो एक oocyte के साथ स्पर्म का मिलन होता है, तब वो जो जाइगोट बनता है उसके अंदर 3 प्रकार के जीन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, क्रिएटिव जीन, रेगुलेटरी जीन और टाइम कॉन्शियस जीन। तो इसीलिए ब्रह्मा के 3 फेस बताए गए हैं कि जो क्रिएटर है उन्होंने ही आपको त्रिदेव का वरदान दिया है। जो आपके क्रिएटर, आपके मदर फादर हैं, उन्होंने ही आपको तीन देवताओं का वरदान इनबिल्ट दिया है। So you are gifted with the 3 kinds of consciousness. ये सब मेटाफोरिकली हमें प्रेजेंट किया गया, इसलिए हम ईश्वर को बाहर ढूंढने लगे, राइट? जबकि सभी शास्त्रों ने कहा है ईश्वर आपके अंदर है, फिर भी आज तक किसी ने नहीं सोचा कि ईश्वर मेरे अंदर किस तरह से है। सब बोलते हैं जीवो हम, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, राइट? चिदानंद रूप शिवो हम, राइट? शिव अहम, मैं ही शिव हूं। ये हम बोलने तो बोलते हैं, लेकिन आज तक कितनों ने रियलाइज किया? वी हैव टू रियलाइज दैट कि शिव का आपके अंदर जो अंश पड़ा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में,
उनको रियलाइज करो, उनको एक्चुअलाइज करो। ओके, सो हमें एक तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एपिजीनेटिक्स जो है वो रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस है। और एपिजीनेटिक्स को कौन रेगुलेट करता है? हमारे एपिजीनेटिक्स को कौन रेगुलेट करता है? योग। हमारे एपिजीनेटिक्स को योग रेगुलेट करता है। जो डेली हमारा जो जीवन है वो योग के द्वारा चलता है। वो एपिजीन का जो इम्प्रिंट है उसका एग्जीक्यूशन जो है आपको वो भाव देगा, वो इच्छा देगा, वो विचार देगा, वो आनंद देगा, वो दुख देगा, वो सब वही करेगा। राइट? और वो कैसे करेगा? बायोकेमिकल चेंजेस लाकर शरीर के अंदर वो हार्मोन सिक्रीट कराएगा और बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा और वो एग्जीक्यूट कराएगा। हमारे शास्त्रों में कोई नॉन साइंटिफिक चीज है ही नहीं, सब कुछ साइंटिफिक है। एवरीथिंग इज साइंटिफिक। बट इसको साइंटिफिक न दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत खराब प्रयास किए हैं। और उसमें एक अंग्रेज ने तो बहुत ही खराब रीत से उसको प्रेजेंट किया गया है, एक अंग्रेज के द्वारा। और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ही तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया है। दो दे न्यू कि हमारी संस्कृति में चित्त को हम ईश्वर का और मनुष्य के बीच का सेतु समझते हैं, ये हम जानते थे। हम मन और चित्त को एक ही शब्द के लिए, एक ही मीनिंग के लिए यूज कभी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। हम चित्त और मन को कभी एक दूसरे के अवेज में यूज नहीं करते हैं। राइट? आज भी हम चित्त को अलग ही समझते हैं और मन को अलग ही समझते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी, व्हाट महर्षि पतंजलि सेज, यू नो दैट विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस्थिति निबंधिनी। मन को स्थिति को बांधने वाली हमारी वृत्तियां हैं। वो वृत्तियां कहाँ से आती है? चित्त में से आती है। तो चित्त उसका मैनेजर हुआ कि नहीं हुआ मन का? तो मन और चित्त अलग है। राइट? योगश चित्त वृत्ति निरोध। तो उन्होंने चित्त और मन को अलग बोला है। हम अलग समझते थे लेकिन हमें कंफ्यूज कर दिया और चित्त को मन बना दिया और थॉट वेव्स बना दिया। ऐसा कोई थॉट वेव्स चित्त नहीं होता है। चित्त के अंदर कोई थॉट वेव्स नहीं होते हैं। चित्त के अंदर मार्क्स होते हैं, एपिजेनेटिक मार्क्स, जो हमें कोई भी चीज को परसीव करने में एक दर्पण की तरह काम करता है। मैं ये कंप्यूटर को देख रहा हूं तो मैं उसको कंप्यूटर की तरह परसीव करूं, उसके लिए मेरा एपिजीन जवाबदार है, चित्त जवाबदार है, मेरा मन नहीं। राइट? वॉट एवर आई एम परसीविंग इज थ्रू माई चित्त ओनली। इसमें मन का कोई रोल नहीं है। मन का रोल कहाँ आता है? जब चित्त जेनेटिक लेवल पर वो मैसेज को लेके जाता है, तब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो खुलता या बंद होता है अलग अलग महाभूतों के लिए और अलग अलग mRNA के लिए, tRNA के लिए, sRNA के लिए। वो जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मूवमेंट है, वो मन है। वो मन वो मन के ऊपर प्रभाव डाल के द्रव्यों को अंदर ले जाना या बाहर लाना, या फॉर जिनका एक्सप्रेशन बाहर लाना, उसको प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है। राइट? सो आप ये सोच लो कि एक कंपनी है, वो कंपनी के अंदर एक गेट कीपर है। राइट? एक मैनेजर है। मैनेजर गेट कीपर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये भाई को अंदर आने देना है। तो गेट कीपर का रोल क्या है? सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि ये यही व्यक्ति है कि नहीं है, बस। देन ही विल अलाउ और नॉट अलाउ। सो मन का काम यही है, वो चित्त की वृत्तियों को अलाउ करें या ना करें, वो चित्त के इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो एक गेट कीपर है मन और मैनेजर है चित्त। मैनेजर मैनेज करता है दोनों तरफ से। जो आने वाला है वो कंपनी के फायदे में है या नुकसान में है, कौन डिसाइड करेगा? मैनेजर।
कंपनी उससे क्या काम ले सकती है, क्या काम नहीं ले सकती है, वो कौन डिसाइड करेगा? मैनेजर। सो एवरीथिंग इज मैनेजर। तो मैनेजर के ऊपर ही अगर कंट्रोल योग का होगा तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, राइट? एक एक इंडस्ट्री के मतलब वो जो कंपनी है, वो कंपनी के मालिक को क्या चाहिए कि वो जो ऐसा मैनेजर हो जो एकदम शार्प हो, इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, और उन्होंने दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से काम कर पाए, राइट? और ऐसा मैनेजर भगवान ने हमें ऑलरेडी दिया है चित्त के रूप में। तो नाउ चित्त डिसाइड्स whether टू ग्रास्प इट और नॉट टू ग्रास्प इट, बट चित्त के ऊपर जो बॉस बैठा है वो है ईश्वर, जीनोम। सो एपिजीन के ऊपर जो रेगुलेशन करता है वो जीनोम है। कभी कभी एपिजीनेटिक चेंजेस इतने खराब हो जाते हैं कि वो हमें सरवाइव नहीं करने देते हैं। कभी कभी मैनेजर है ना करप्ट हो जाता है, घूस खा लेता है ना, स्वादिष्ट व्यंजनों की घूस खा लेता है। उसको 2 रसगुल्ला दे दो, वो बिक गया। 2 गुलाब जामुन दे दो, बिक गया। तो चित्त है ना वो बिक जाता है, मैनेजर। इसीलिए उसके ऊपर चेक रखना पड़ता है, और वो चेक रखते हैं ईश्वर, जीनोम, राइट? तो आप जो रसगुल्ला आपको आए, वो मैनेजर के पास, मैनेजर वो देखता है कि वो वहां से सीसीटीवी कैमरा से मुझे देख रहा है, मैं नहीं ले सकता वो रसगुल्ला। वो बोलेगा नहीं नहीं, क्यों मुझे घूस दे रहा है, हैं भाग जाए यहाँ से, वो भगा देगा। तो हमारी वृत्तियां जो है ना वो अंदर से साफ ही रहेगी अगर जीनोम का कंट्रोल है तो। भगवान ने ऐसा कंट्रोल रखा है अपने पास। हम नहीं बोलते हैं अंतिम कंट्रोल भगवान के पास है, वो क्यों ऐसा बोलते हैं? वो जीनोम के पास अंतिम कंट्रोल है और वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ ट्यून में है। वो हमारे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ हमारा जीनोम ट्यून है, और उसी के हिसाब से वो अंदर विषय लाएगा या नहीं लाएगा। पर नॉर्मल रूटीन लाइफ में वो जीनोम एक्टिवेट इसलिए नहीं होता है कि हमारा सर्वाइवल मोड जो है वो खतरे में नहीं आता है। हमारा सर्वाइवल खतरे में नहीं होता है। जब कभी भी सर्वाइवल खतरे में होता है, आपने कभी वीडियोस देखे होंगे ये यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो जब सर्वाइवल खतरे में आ जाता है तो कोई भी प्राणी का जो है वो इनर कॉन्शियसनेस जागृत हो जाता है और वो कैसे भी करके बच जाता है, राइट? वो इसकी कल्पना, हमारी कल्पना के बाहर शक्तियां आ जाती है उसके अंदर। वो कहाँ से आती है? वो जीनोम से आती है, टू मेक अ सर्वाइव। बट हमारा गोल सर्वाइवल नहीं है। इंसान बने हैं, सर्वाइव तो करेंगे ही, है ना? हमारा गोल सर्वाइवल नहीं है। हमारा गोल है ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस को साफ करके ईश्वरीय चेतना के साथ लीन होकर पूर्ण पूर्ण आनंदमय स्वरूप में, सच्चित आनंद के स्वरूप में जीवन जीना। और वो जीने के लिए सबसे बेसिक लिंक है हमारा डाइट, राइट? अगर हम 10 प्रकार से खाएंगे नहीं, 9 प्रकार से तुष्टि नहीं होगी, तो अष्ट सिद्धि आएगी नहीं, और अष्ट सिद्धि आएगी नहीं तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से हम जी नहीं पाएंगे, राइट? तो सबसे बेसिक चीज है आहार। और महर्षि कपिल ने आहार के ऊपर समझाया है कि आहार ही द्रव्य बनाता है, आपके सेलुलर मैटर को आहार ही बनाता है। आपके सेल में जो मैटर पड़ा है वो आहार के द्वारा ही निर्मित है। आप जिस पंच महाभूत को अंदर भरते हो वही पंच महाभूत द्रव्य के रूप में एक्सप्रेस होता है सेल में, और सेल में रहता है। और वही द्रव्य जो है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस लाता है, और वही एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन लाने के बाद वही द्रव्य वो जेनेटिक एक्सप्रेशन में, मतलब जेनेटिक रेप्लिकेशन और उसका प्रोटीन फॉर्मेशन में उसका काम करता है, उसका ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, उसका प्रोटीन में ट्रांसलेशन कराता है, राइट? तो
अब कौन सा प्रोटीन बनेगा वो भी आपका आहार डिसाइड करता है। शरीर में कौन सा प्रोटीन बनेगा वो भी आपका आहार डिसाइड करता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि जो प्रोटीन हम खाते हैं वही प्रोटीन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है? कितना ऐसा मानते हैं? कोई उंगली ऊंची नहीं करेगा, क्योंकि वो सब गलत है। हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन के रूप में कभी एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो एमिनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब होता है, वो वो द्रव्य बन जाता है, राइट? वो सॉल्यूट बन जाता है जो कि वो सेल में एंटर कर पाए। प्रोटीन कभी सेल में एंटर कर पाता नहीं है, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो द्रव्य बन जाता है, राइट? समझ में आ रहा है ना? अगर बाउंसर जा रहा है तो बोलना, उंगली ऊपर करना। हाँ जी, आप जी, जयप्रकाश जी, आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ क्वेश्चन है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे रोकना, क्योंकि मेरी गाड़ी चलेगी तो रुकेगी नहीं, है ना? ओके, सो when we have understood that the diet is the most eminent source of epigenetic regulation of our life. Epigenetic regulation is the key which is regulated through yoga by genome. Right? Genome के द्वारा we regulate our life through epigenome. मैनेजर के द्वारा हम कंपनी चलाते हैं, राइट? कंपनी के ओनर तो हम ही हैं, लेकिन मैनेजर रखा है एपिजीनोम, पर मैनेजर कभी कभी घूस खाकर हमारा सब मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो कम कर देता है और सेलिंग कम कर देता है और हमारा नुकसान कर देता है। तो विषयों में न पढ़ने के लिए हमें हमारे पुरखों ने कहा है कि आहार जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको सिलेक्ट करना चाहिए, और देन वी लिव दैट वे। हमारी थाली में आज देखो, एक इंडियन की थाली में सातों सात प्रकार के रस होते हैं, सभी प्रकार के द्रव्य होते हैं, राइट? वी हैव ऑल दैट। हम रोटी भी लेते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, मिठाई भी लेते हैं ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिठाई में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, स्टार्च भी लेते हैं चावल के रूप में, आलू के रूप में, राइट? सब्जी भी लेते हैं हम मिनरल्स के लिए। ग्रीन चीज है वो बुद्धि से रिलेटेड है, वो सब मिनरल से रिलेटेड है। सो वी टेक मिनरल्स फ्रॉम सब्जी से, वेजिटेबल्स, राइट? सम विटामिन्स, ओके? वी हैव दैट। हमारी थाली जो है ना वो नवदा तुष्टि के लिए बनी है, इसीलिए हम जब नवदा भक्ति करते हैं तो हम 9 प्रकार की चीजें 9 दिन के लिए भगवान को अर्पण करते हैं। आप अगर बहुत बारीकी से देखोगे तो हमें हमारी लाइफस्टाइल को इस तरह से उन्होंने सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो हमारी थाली में वी हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स which we require in Indian थाली, Indian dish, right? But धीरे 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 अब we are manipulated by other people from outside, and we are taking pizza, only pizza, right? Huh? We have some nutrients in that, but we have more garbage in that, methylated, that the products which can methylate our genes, epigenes. इसीलिए जो पिज्जा खाते हैं उसको पिज्जा की आदत क्यों पड़ती है पता है? किसी को अगर आप थोड़े दिन के लिए पिज्जा पे रख दो तो उसको पिज्जा की आदत हो जाएगी। इसका कारण है एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ आवर डाइट टुवर्ड्स आवर लाइफ, राइट? क्योंकि वो जो मिथाइलेशन वाले जो द्रव्य हैं वो एपिजीन को मिथाइलेट करके उस खाने को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करेंगे,
जैसे एक मैनेजर को कोई बोलता है कि कोई आता है कि इस कंपनी में से मैं ये प्रोडक्ट है वो सस्ते में खरीद लूँ, तो मैनेजर को आके बोलता है तू 1 लाख की चीज़ है ना मुझे 10,000 में दे दे, मैं तेरा घर भर दूँगा। तो मैनेजर बोलता है ठीक है चल एक काम करते हैं, 1 लाख की चीज़ 10,000 में ले जा, मेरे घर में पैसा रख जा। ऐसा मैनिपुलेशन जो है वो ये सब खाना करता है। दिस टाइप ऑफ डाइट वो हमारे मैनेजर को घूस देता है, एपिजीन को, राइट? और ऐसे मार्किंग्स कर देता है कि जिससे हमें उसी खाने की तरफ हमारा लक्ष्य जाए, राइट? हमारा इच्छा ही वही खाने का हो जाए। तो आजकल के बच्चों की विचारों का कोई दोष नहीं है। उनको अगर आपने लगातार एक टाइप का डाइट दिया, तो वो उसके आदी हो जाएँगे और उसका एपिजेनेटिक प्रोग्राम उसको उसकी तरफ ले जाएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए आप उनको कहीं 15-20 दिन के लिए ट्रैकिंग पे भेज दो, जहाँ सिर्फ़ आलू की सब्ज़ी और एक आध पराठा मिले। देखो फिर 15 दिन के बाद, 21 दिन के बाद वो ट्रांसफ़ॉर्म होके आएगा, उसके एपिजेनेटिक जो मार्क्स थे वो निकल जाएँगे और वो सब कुछ खाने में तुष्ट रहेगा, जो हमारा घर का खाना है, खुश रहेगा। समझ में आ रहा है ना? डू यू अंडरस्टैंड? So we have to cultivate a habit to our children or ourselves that we don't eat such a things for a long time. Once in a blue moon means there is no blue moon, never blue moon, but once in a blue moon, कभी कभी ऐसा मन कर जाए तो भले ले लो, लेकिन उसको कभी भी रेगुलर बेस पे मत लो. डोंट टेक इट रेगुलरली. Even taken at regular intervals that can create epigenetic marks that can alter your epigenes of particular intervals. Somebody says, I eat only once a week. Every Saturday I go to the hotel and I eat Chinese, right? पर वो एवरी सैटरडे करके वो हमारा शरीर जो है ना वो टाइमली प्रोग्राम होता है. सो एवरी सैटरडे फिर वो क्रेविंग होगा ही होगा. So we have a program, timed program, right? Our life is a timed program which has to run according to the time. Okay? Yes. बच्चों की आदत बदल सकते हैं, लेकिन बड़ों की कैसे? राइट. राइट. अनीता जी, योर क्वेश्चन इज रियली वेरी गुड. वो आदत बदलने के लिए हम लोग अभी पूरा ये डाइट का कोर्स करेंगे और मैं आई एम ट्राइंग दैट कि हाउ आई कैन चेंज द डाइटरी हैबिट्स ऑफ elderly people, right? Okay, so we shall begin with the course, but ये बहुत बेसिक चीज, बेसिक इंट्रोडक्शन था ये कोर्स के बारे में कि हम कैसे नवदा तुष्टि करेंगे, कैसे दशदा आर्यम के द्वारा नवदा तुष्टि करेंगे एंड कैसे हम वो नवदा तुष्टि के द्वारा अष्टधा सिद्धि प्राप्त करेंगे. अष्टधा सिद्धि मतलब 8 फोल्ड सक्सेस. अष्टधा मतलब 8 फोल्ड and siddhi means success, right? Navdha means 9-fold tushti, contentment, and Dashda Aharyam means 10-fold. Yes, मैं मन एंड चित्त का डिफरेंस बताता हूँ, but Dashda Aharyam means 10-fold food that we are going to discuss. But इनका क्वेश्चन बहुत जेन्यून है कि मन और चित्त के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत खिले मार मार कर हमारे दिमाग में डाल दिया गया है चित्त और मन एक ही है, और मन के वे उसको चित्त की वृत्तियां बोलते हैं, राइट? ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है. अगर मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, आई फॉरगॉट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, बट मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मन को वश में किया जा सकता तो इतना बड़ा योग शास्त्र देने की जरूरत पड़ती?
ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती? आपको ट्रांसफॉर्म क्यों होना पड़ेगा? अगर आप मन को वश में कर सकते हो, सबको जेल में डाल दो, वहां कुछ खाना ना दो, तो मन को मार के भी तो आपको जीना पड़ेगा, राइट? पर चित्त नहीं मरेगा। वो जेल में से निकलने के बाद वो फाफड़ा जलेबी ही खाने दौड़ेगा। तो मन और चित्त का डिफरेंस ये है। चित्त के अंदर मार्किंग्स होते हैं जो आपको भूलने नहीं देते हैं, और मन को हम वश में हमारे वर्तन के द्वारा, हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे संयम के द्वारा कंट्रोल में कर सकते हैं। बट हम हमारे एपिजिन को कंट्रोल में करने के लिए हमें योग ही करना पड़ेगा। अष्टांग योग करके अष्टधा सिद्धि प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तो मन और चित्त का डिफरेंस के बारे में और बताता हूं। जैसे एक मैंने बताया, जैसे चौकीदार है। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि चौकीदार को हमने अपॉइंट इसलिए किया है कि वो प्रॉपर इंसान को अंदर आने दे, और इम्प्रॉपर इंसान को उसको लगे कि ये डाउटफुल है तो उसको वहां रोक के रखे या बाहर निकाल दे, राइट? तो हमें चौकीदार के ऊपर भी एक मैनेजर रखना पड़ेगा कि जो चौकीदार को इंस्ट्रक्शन दे कि ऐसे इंसान को आने देना है, ऐसे इंसान को नहीं आने देना। तो और मैनेजर और चौकीदार एक ही हो गया तो क्या होगा? जो मैनेजर का काम है, जो कंपनी को आगे बढ़ाना, उसका उसका एग्जीक्यूशन कराना, उसके प्रॉफिट लॉस का ध्यान रखना, राइट? उसका मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना, वो कौन रखेगा? तो मन जो है वो एक स्लेव है मैनेजर का। मैनेजर जो है एक स्लेव है आपके कंपनी के ओनर का। और चौकीदार सिर्फ डिसाइड कर सकता है कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर आने नहीं देना है, और वो भी चित्त के इंस्ट्रक्शन में ही। मतलब मन जो है चौकीदार है और चित्त जो है मैनेजर है। अब इस अगर एग्जांपल से नहीं पता चल रहा है तो मन और चित्त का दूसरा डिफरेंस देखते हैं। आपके मन में जो आप मेमोरी में डालते हो, वो अगर आपके मन में रहता तो आप हिप्नोटाइज करने के बाद में आप सब कुछ भूल जाते, राइट? पर आपको सब याद रहता है। इवन इतना ही याद रहता है कि पिछला जन्म भी याद आ जाता है ना? सब कुछ याद आ जाता है। अगर वो याद आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मार्किंग से आता है, वो है एपिजीन। आप कितने भी हिप्नोटाइज कर दिए जाएं, लेकिन आपका मैनेजर है ना, वो तो जिंदा रहेगा, वो तो वहीं रहेगा। खाली आप चौकीदार को उल्लू बना सकते हो, आप इनविजिबल होके अंदर दाखिल हो सकते हो, लेकिन आपको मैनेजर के पास आकर पूरा प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आपका माल जो है आपको मिलेगा। आप मन को उल्लू बना सकते हो, चित्त को उल्लू नहीं बना सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मन एंड चित्त, राइट? समझ गए? चित्त मिरर है। आप मिरर के अंदर आप कितना भी चाहो, आपके यहाँ ऊपर फुंसी हुई है, आप छुपा नहीं सकते हो, राइट? पर अपना फोटोग्राफ लेके फोटोग्राफ के ऊपर आप थोड़ा सा मेकअप करके तो उसको छुपा सकते हो। वो मन है। जो आउटपुट है ना, वो मन के द्वारा होता है, और जो एग्जीक्यूशन है वो चित्त के द्वारा होता है। मन इज ओनली अ स्लेव, आउटपुट का डिवाइस है वो। देखो, आपको मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। एक कंप्यूटर है, राइट? उसके अंदर 5 इनपुट डिवाइस है और 5 आउटपुट डिवाइस है, 5 रिसेप्टर्स है और 5 एग्जीक्यूटर्स है। सो वी हैव रिसेप्टर प्रोटीन एंड एक्टिवेटर प्रोटीन्स। इस तरह से हमारे कोश के अंदर, सेल्स के अंदर ये सिस्टम है। सो 5 इनपुट डिवाइस है, 5 आउटपुट डिवाइस है। वो ये दोनों को जोड़ने वाला जो है वो चित्त है, और जो आउटपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है उसके बाहर का जो मतलब जैसे मेरा माउस है, तो माउस मेरा हो गया सेंस, और उसको चलाने वाला हो गया मन।
तो वो सेंस को अंदर लेना है तो वो मन डिसाइड करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोसेस करना है वो चित्त डिसाइड करेगा। हिना जी आपका कर्सर हटा लें। हिना 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 जी आपका कर्सर बारी बारी हिल रहा है। यस, थैंक यू। ओके, सो कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लिंक करती है कि नहीं करती है? आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आप विंडोज पे चलाते हो ना अपने अपने कंप्यूटर को, सो यू रन द कंप्यूटर ऑन विंडोज, राइट? दैट बिकम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लिंक्स द सॉफ्टवेयर विद द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर विद द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहाँ से है? सॉफ्टवेयर जीनोम से आता है और बाहर से एटमोस्फियर से आता है। दोनों को लिंक करके वो डिसाइड करता है कि कैसा आउटपुट देना है। ओके नेहा जी, ओके फाइन। सो अब समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क प्लीज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। ओके, सो अब हम डाइट के ऊपर जाते हैं। तो मैं आपको, आज तो टाइम हो गया है, लेकिन कल मैं आपको पूरा एक स्लाइड से बताऊंगा। आपने स्लाइड्स को देखा होगा, पीपीटी स्लाइड्स को देखा होगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि अगर हम हमारा फूड राइट फूड चूज करते हैं तो हमें कभी जिंदगी में मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। We never require chemical medicines if we choose our food correctly, right? And that was designed by our rishis and that was given to us, and because of our Vishayavati Vritti, we have manipulated our epigenetics and now we are in a mess. We are in a mess, right? Okay, so हम लोग क्या क्या खाते हैं मुझे बताओ, हम क्या क्या खाते हैं? हम जो खाना खाते हैं वही हमारा खाना है क्या? सब खाते हैं, सब जो खाते हैं, चीज जो भी दुनिया में मिलता है सब खाते हैं। झूठ भी खाते हैं। राइट, झूठ तो बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, रोज खाना पड़ता है ना, असत्य को खाना पड़ता है। यस, सब खाता है, जो मिले वो सब खाता है। लेकिन हमने कभी हमारे कॉन्शियस अप्लाई किया है कभी कि हमने सोचा है कि हम कितने प्रमाण में क्या खाते हैं? हम सबसे ज्यादा आकाश तत्व को खाते हैं। जो हमारे शरीर में मेन तत्व है वो आकाश तत्व है, और हम सबसे ज्यादा आकाश तत्व खाते हैं। यस, पीपल आर ईटिंग स्ट्रेस ऑल्सो, दैट विल कम। एंड हम आकाश तत्व सबसे ज्यादा खाते हैं ना। आपको पता है कैसे खाते हैं? वी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द कॉस्मोस थ्रू आकाश तत्व। हमारे कान जो है ना, वो जब हम गर्भ में होते हैं तो सबसे पहली इंद्रिय जो डेवलप होती है क्या होती है? हमारे कान। उसी क्रम में वो इंद्रिया डेवलप होती है जिस क्रम में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमारे गर्भ के अंदर हमारे कान डेवलप होते हैं, जिससे हम कॉस्मिक सिग्नल्स को रिसीव कर पाए कानों के द्वारा। ये जो है ना आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, गले से रिलेटेड है, और गला जो है आकाश तत्व है, कान भी आकाश तत्व का ही रूप है और आकाश तत्व को वो ग्रहण करता है। सो हमारा 24 घंटे कान खुले रहते हैं, आंख बंद होती है पर कान बंद होते हैं, सिवाय के मिति ने पहना है वैसे कोई दो चीज पहन लिया हो ऐसे, है ना? है ना, ये आपके पास आइडिया अच्छा है। लेकिन यू नो दैट आपने जो अंदर स्पीकर है ना, उसके अंदर जो मैग्नेट है, उससे आपने रेडिएशंस भी अट्रैक्ट कर लिए हैं। मोबाइल टावर के रेडिएशंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो यू आर डिस्टर्बिंग योर कॉस्मिक डाइट। सो आकाश तत्व से जो आता है उसको हम कॉस्मिक डाइट बोलेंगे।
वो हम पूरा दिन ग्रहण करते हैं, राइट। दूसरे नंबर का डाइट क्या है? एयर डाइट। हम 21,600 और उससे ज्यादा ही सांस भरते हैं, तो हमारा एयर का डाइट सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड डाइट क्या है? अब पता चल गया सबको। थर्ड डाइट भक्ति बोलेगी, है ना। भक्ति थर्ड डाइट क्या है? ईथर के बाद एयर, उसके बाद લાગણીઓ, પ્રેમ, वो વાત્સલ્ય, तो वो तो आपने नवधा तुष्टि बोल दिया। अग्नि। अग्नि, सूर्य, अग्नि। हमारा तीसरा डाइट है अग्नि, क्योंकि अग्नि से ही शौच होता है और अग्नि से ही खाना खाने की ताकत आती है, खाना हजम करने की। और अग्नि के बाद कौन सा आता है? जल। જલ, और जल के बाद पृथ्वी। પૃથ્વી, तो हम जो खाना खाते हैं ना, that comprise 1 to 3% of our total diet। जो रोज 3 टाइम खाना खाते हैं ना, मैं 1 टाइम खाता हूँ, पर आप सब 3 टाइम खाते होंगे। So whatever we eat, that comprises of only 1 to 3% of the total diet we take in the day। और वो 1 to 3% के लिए हम कितने चिंता करते हैं। आज क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, नाश्ते में क्या खाएंगे, राइट। मैं बोलता हूँ, फिर से आएगा, रिपीट आएगा, इट विल कम, इट विल बी रिपीटेड, राइट। तो सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की करनी चाहिए? आकाश तत्व की। जो आकाश तत्व हम भरते हैं ना, उसकी, कॉस्मिक डाइट की। अब कॉस्मिक डाइट की चिंता करके हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया था? पहले क्या करते थे ऋषि मुनि हमारे? उपवास, મેડિટેશન, ध्यान। उपवास, ध्यान में आंखें बंद हो जाती है, सांसें स्लो हो जाती है, आपका खाना बंद हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो खाना बंद हो जाता है, पानी पीना बंद हो जाता है, राइट। फिर आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपको स्मेल करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सेल्फ स्मेल हमें इसलिए दी है कि हम जो खाना खाते हैं उसको स्मेल करके वो स्टेल है कि नहीं है, वो ताजा है कि नहीं है, वो हम समझ पाए। यस यस, अनिता जी, आई एम कमिंग टू दैट। वो कोर्स में इंक्लूड है क्या कि इंडियन वुमन का आधे से ज्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है। पर आई टेल यू, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव दैट आधे से ज्यादा टाइम इन किचन। क्यों? आपको बताता हूं मैं। हम जिसमें लंबे समय तक रहते हैं ना, वो चीज की सिग्निफिकेंस हमारे लिए कम हो जाती है। वियोगे वियोग, योगे न वियोग। तो इसीलिए स्त्री जो है ना, वो अपने आप को ज्यादा इवॉल्व कर पाई है पुरुष से। स्त्री अपने दोनों ब्रेन को यूज कर सकती है, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा इवॉल्व कर पाई है। यू आर इवॉल्व क्रीचर, लेस, मतलब वी आर लेस इवॉल्व, राइट। तो अनिता जी, ये हम आएंगे कोर्स में लेंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, फिर सेकंड में हम कितनी सांस भरते हैं? आप देखो, वी ओनली ब्रीथ 1/3 of the capacity of our lungs। खाना तो पेट भर के खाना है, लेकिन हवा आधी भरनी है, राइट। आधी भी नहीं, 1/3। तो अगर आप 1/3 हवा भरते हो तो 1/3 खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी हवा भरते हो उतना ही खाना हजम होगा। क्योंकि जितनी हवा भरोगे उतना ही फायर अंदर से चालू होगा, जितना फायर होगा उतना ही आपको खाना हजम होगा, राइट। तो सेकंड नंबर आता है सांस के ऊपर। तो आपका जो है वो सांसों का डाइट, प्राणिक डाइट जिसको बोलते हैं, प्राणिक डाइट। कॉस्मिक डाइट के बाद आता है सेकंड नंबर में प्राणिक डाइट। वो स्लाइड में है, डोंट वरी, नो नीड टू राइट, इट इज देयर इन द स्लाइड्स, राइट। जस्ट समझ लो, you need to understand only। So our second
diet is air, oxygen. Not only oxygen, there are many gases we use, right? Even the methyl gas also we use for methylation of our epigene, है ना? वो इंसान को बदबूदार जगह पे रख दिया जाए तो अपने आप ही उसका जो शरीर है वो आपको गंदा, मतलब वो डेवलप ऐसे गंदा होने लगेगा, वो दिखने में भी गंदा दिखेगा। अगर किसी को गंदगी में रख दिया जाए तो उसका कारण क्या है? वो मिथाइलेटेड गैस जो है वो अंदर जाती है और वो मिथाइलेशन प्रोसेस जो है हमारा एपिजेनेटिक मार्क्स करने का, जो हमारे जीन्स को अल्टर करता है, वो मार्किंग बढ़ जाता है। अब आप मिथाइलेशन वाला फूड लोगे तो भी यही होगा, मिथाइल ग्रुप जिसमें ज्यादा है, राइट? और जो डिमिथाइल करते हैं ऐसे फूड हमें ज्यादा लेने चाहिए, उसकी जगह पर हम मिथाइलेशन के लाए ऐसे फूड लेते हैं। सो मिथाइल कंटेंट वाले ज्यादा हम लेते हैं। सो अगर बदबू है तो आप भाग जाते हो ना दूर, आपको मन में एकदम से ग्लानि महसूस होती है ना? डू यू अंडरस्टैंड? ग्लानि होती है मन में, है? तो क्यों होती है? क्योंकि वो आपका शरीर नहीं चाहता है कि वो अशुद्धि वो अंदर ले। उस स्मेल से भी तो अशुद्धि आती है ना, वो भी एक आहार है, नवदा आहार में वो भी एक आहार है, स्मेल। ओके, देन उसके बाद में हम अग्नि तत्व को ध्यान में लाएंगे। हम में से कितने लोग सूर्य प्रकाश में कम से कम 4 घंटा रहते हैं? दैट मेक्स ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ आवर फूड। हमारे 24 घंटे में से 30% कम से कम हमें सूर्य प्रकाश में रहना चाहिए, जो हम नहीं रहते हैं, राइट? हमने घर बना लिए, छत बना ली, सब कुछ बना लिया और अब विटामिन D3 के पीछे दौड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश खाली विटामिन D3 नहीं देता है, पर पाचन की शक्ति भी देता है, आत्मविश्वास भी देता है, आपका सक्सेस रेट जो है जीवन का वो सूर्य से ही तय होता है। इसीलिए यदि ये 4 महीने जो है ना हाइबरनेशन के महीने हैं, जो जीव हाइबरनेट करते हैं वो इस 4 महीने बाहर निकलते हैं, और जो जीव जो सूर्य प्रकाश में जीते हैं वो इस समय हाइबरनेट करते हैं। इसीलिए हमें ये 4 महीना ऐसा बोलते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो लक्ष्मी जी के साथ पाताल में चले गए, राइट? विष्णु भगवान ये 4 महीने पाताल में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए हमें कम से कम फूड खाना है, क्योंकि सूर्य प्रकाश भी कम है, नारायण हाजिर नहीं है, नारायण पाताल में चले जाते हैं, चातुर्मास करना है। तो कम कम खाओ, और ऑटोफेजी करने का सबसे अच्छा समय है। इसीलिए व्रत उपवास इस समय में इसका बहुत महिमा है। तो जब आप उपवास करते हो तो यू इंड्यूस ऑटोफेजी विद इन योर सेल्स। आप देखो, हम इतने लकी हैं इंडिया में, हम पले बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋतुएं 6 की 6 ऋतुएं इस तरह से सिचुएटेड है, इस तरह से रेगुलेटेड है कि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को पवित्र और शुद्ध रख पाए। अदरवाइज पूरे विश्व में ऐसा सिचुएशन कोई देश में नहीं है कि 6 की 6 ऋतुएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई आगे बढ़ती है। ये सब बारीक बारीक चीजें हमें समझनी है, राइट? देन वाटर, जल, that makes only 2 to 5% of our diet. जल, राइट? अब आपका आकाश तत्व कितना है, उसका 2 to 5% ही, मतलब टोटल जो 100% में से
आकाश तत्व के रेशियो में ले लो तो आपका 2 to 5% ही वाटर एलिमेंट जो है बॉडी में जाना चाहिए, जिसमें से जो 2 to 5% के 100% में से 80% खाने में से जाना चाहिए और 20% पीने में से जाना चाहिए। और 80% कौन से चीज में ये होता है? पानी, फ्रूट्स में। 70 to 80% पानी किस में होता है? फ्रूट्स में। सो हमारा जो मेन डाइट होना चाहिए वो है फ्रूट। वो आएगा आगे, सब आएगा, पर इस तरह से आपको समझना है कि हम कौन से तत्व का डाइट किस तरह से लेते हैं, ना। इसीलिए कॉस्मिक डाइट लेने के लिए आपको ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि आप जो 8 घंटे में नहीं ले पाते हो, वो आधे घंटे में ध्यान के द्वारा आप कॉस्मिक चेतना को ग्रहण कर लेते हो। वो आधे घंटे में आपको ग्रहण हो जाती है कॉस्मिक चेतना, राइट। तो ध्यान इसीलिए करना है। सबसे बड़ा हमारा फूड क्या है? ध्यान। एक्चुअली अगर खाने में हम आधा घंटा लगाते हैं तो ध्यान में 3 घंटे लगाने चाहिए, है ना। तो ज्यादा कॉस्मिक फूड आएगा तो आप ज्यादा हेल्दी होंगे। पहले के जमाने में लोग 3 घंटे का ध्यान तो सहज रूप से करते थे, सहज रूप से। अब 3 घंटे का बोलो तो ऐसा लगता है जैसे उसको हमने सजा दे दी। मैं जब बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि जब मैं पढ़ता था, 17 इयर्स का था, तो एक डैम की चोटी पे जाके बैठता था और वहां पर 3 घंटे का ध्यान करता था, तो वो लोग विश्वास नहीं करते हैं आज। 3 घंटे कोई कैसे बैठ सकता है ध्यान में? जिसको ध्यान लग जाता है ना, उसको 3 घंटे 3 मिनट जैसे लगते हैं। यस, प्लीज। अभी बंद ही हो गया, अब अभी खत्म ही हो गया। सो वी एंड अप विद द 5 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल डाइट वी टेक। बाहर से डाइट लेते हैं वो, और फिर हम अंदर का डाइट, मतलब खाना हजम होने के बाद में सेल्यूलर डाइट को हम इसके बाद समझेंगे। सो 5 चीज हमने समझ ली: कॉस्मिक डाइट, एटमॉस्फेरिक डाइट, राइट, देन सोलर डाइट, लूनर डाइट एंड अर्दन डाइट। सो अर्थ में से हम जो हम पका के खाते हैं वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, राइट। ये सब चीज जो अर्थ से पका के खाते हैं वो सब अर्थ डाइट है। तो ऐसे 5 प्रकार के डाइट हम बाहर से लेते हैं, जिसमें आकाशीय डाइट सबसे ज्यादा होता है जो हम स्लीप में लेते हैं, राइट। सो अब आई थिंक वी शैल एंड अप नाउ, और उसके बाद हम कल मिलेंगे। कल हम स्टार्ट विद द स्लाइड्स, सो दैट मैं आपको एक एक पॉइंट को बारी बारी समझा पाऊं, राइट। क्योंकि हम लोग ने ग्रॉस बात करी, अभी हमने एक ओवरऑल एक कंसेप्ट बांधा कि डाइट कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और एपिजेनेटिक डाइट रेगुलेशन क्या होता है, जिससे हमारा जीवन जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन प्राप्त करे और हमारे जीवन में से सभी प्रकार की पीड़ाएं, दुख, रोग सब दूर हो, राइट। सो लेट अस प्रे आवर गुरु अगेन एंड विल लीव नाउ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी करते रहे, परस्पर प्रेम भाव हो। So see you all tomorrow. So आज कॉस्मिक डाइट पूरा ले लेना,
कल हम एटमॉस्फेरिक डाइट की बात करेंगे, है ना? थैंक यू सर। See you. थैंक यू सर।